Hello students, today we'll study the first lesson of the book Flamingo, the last lesson. Isn't it amusing that it is the first lesson of the book but it is named as the last lesson. And this lesson focuses around the importance of one's mother tongue. And here in the lesson, it is the importance of French language that has been highlighted by the author. Let's have a look at the lesson. The last lesson, something about the author. This has been written by Alphonse Daudet. He was a French writer. He was born in 1840 and he died in 1897. He was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. Franco means France. Prussian it is given below. Prussian were then the countries which are now Germany, Poland, and parts of Austria. And the war lasted from 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia. France हार गया था and Prussia was led by Bismarck. Bismarck was their leader. Prussia then consisted of what is now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. क्योंकि फ्रांस हार गया था तो फ्रांस के दो districts, Alsace and Lorraine, they were annexed. They were overpowered by Prussians. Read the story to find out what effect this had on life at school. तो जो आर्मी लूज करती है वॉर में, राइट, तो इट हैज़ टू अंडरगो a lot of changes. It has to new rules are imposed on such a territory. So we are going to see how the victory of Prussian over these two districts of France are going to affect the life at a school. Notice these expressions in the text. Infer. Infer means make out their meaning from the context. The words are in great dread of, counted on, thumbed at the edges, in unison, a great bustle, reproach ourselves with. So when we come across these expressions in the text, I will explain you their meaning. I started for school. This lesson is written in first person. It means that the author himself is telling us the story. He is a school student. And later in the lesson, it is revealed that his name is Franz, Franz. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. He was late for the school that morning and he was in great dread. Dread means fear of a scolding. और उसको डर था कि उसको स्कोल्डिंग मीन्स डांट पड़ना, कि उसको डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमल इज़ द नेम ऑफ देयर टीचर, फ्रेंच टीचर. He had said that he would question us on participles. वो एक स्टूडेंट था and he was not prepared for the test on participles. Participles are rules in grammar. उसको नहीं आते थे ये. And I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. For a second he thought of bunking the school that day. He thought of not attending the school. It was so warm, so bright. These lines are very important. The things which were preventing him from attending the school on that day. It was so warm. Weather was sunny, so bright. The birds were chirping at the edge. Edge means corner of the woods. Woods means forest. And in the open field back of the sawmill. Sawmill where wood is cut. उस मिल के पीछे Prussian soldiers, they were drilling. Drilling means exercising. It was all much more tempting. Tempting means attractive than the rule for participles. तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत important हैं. जो warm, bright, sunny weather था, birds which were chirping at the corner of the forest, and the soldiers, Prussian soldiers who were exercising at the back of the sawmill. उस फ्रांस को ये तीनों चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स इन द स्कूल. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मीन्स टू स्टॉप एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने ये जो डिज़ायर थी ऑफ नॉट अटेंडिंग द स्कूल उसको कंट्रोल कर सका एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल हरिडली. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When he passed through the town hall, जब वो शहर के बीच में से गया तो उसने वहाँ crowd means भीड़ देखी in front of the bulletin board. Bulletin board means notice board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. And bulletin board की significance क्या है? Again, this is important कि पिछले 2 सालों से उनकी जितनी भी bad news थी वो सब बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्लेड होती थी. बैड न्यूज़ लाइक द लॉस्ट बैटल्स, जो वो बैटल्स हार गए
थे, द ड्राफ्ट, कोई सर्कुलर, and the orders of the commanding officer of their army. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और उसने अपने आप से पूछा ये क्वेश्चन विदाउट स्टॉपिंग. ही डिड नॉट स्टॉप देयर टू रीड द बुलेटिन बोर्ड. व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब ऐसा क्या हो गया जो यहाँ इतनी भीड़ लगी है. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to school in plenty of time." When the writer was hurrying to school as fast as he could, because वो late था school के लिए, तो जितनी जल्दी चल के जा सके he was going. The blacksmith, वहाँ एक blacksmith था जिसका नाम watcher था, and he was standing there with his apprentice. Apprentice होता है एक helper, एक learner, right, who learns things from someone. Reading the bulletin called after me, "Don't go so fast." जो ब्लैकस्मिथ वॉचर था वो ही मॉक्स हिम, ही मेक्स फन ऑफ हिम सेइंग कि डोंट गो सो फास्ट, बेटा ज़्यादा जल्दी मत जाओ. बब इज़ अ कैजुअल वर्ड यूज्ड फॉर अ बॉय. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. आप अपने स्कूल, अभी बहुत टाइम है, आप अपने स्कूल आराम से पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. The writer could understand that he was making fun of him, and reached M. Hamel's little garden all out of breath. Out of breath, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, वो इतना भाग भाग के गया स्कूल. And he reached little garden, the outside M. Hamel's class there was a garden. He reached there. Usually when school began there was a great bustle. And then he recollected कि usually means on normal days, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था, there used to be a great bustle. Bustle means noise which could be heard out in the street. The opening and closing of desks. जनरली स्कूल में जब भी स्कूल चल रहा होता था तो शोर गली में भी सुनाई देता था. किस चीज़ का शोर? कि डेस्क ओपन हो रही हैं, बंद हो रही हैं. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स इन यूनियन, कि बच्चे सब एक साथ मिलके लेसन्स रिपीट कर रहे हैं. वेरी लाउड, बहुत लाउडली बोल रहे हैं. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. वो अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रख लेते थे और रिपीट करते रहते थे चीज़ों को, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द फ्लोर. रूलर मीन्स जो उनका स्केल होता था. रैपिंग मीन्स अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यू हिट अगेंस्ट समथिंग. तो सर का जो रूलर था वो टेबल पे ऐसे टक टक बजता था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड कि आज सब कुछ बहुत स्टिल है, शांत है. देर इज़ नो मूवमेंट. आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड ऑन. मैंने रिलाई किया था, भरोसा किया था ऑन द कमोशन नॉइस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. उसने सोचा था कि क्योंकि क्लास में शोर हो रहा होगा तो मैं चुपचाप अपनी डेस्क तक चला जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि छुट्टी हो स्कूल की. Through the window I saw my classmates already in their places. Writer had a peep inside through the window, and he saw his friends were already seated in the class, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और जो टीचर थे, फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल, उनका जो आयरन का जो स्केल था, रूलर था, ही वॉज होल्डिंग इट अंडर हिज आर्म एंड ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन. कमरे में चल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. क्योंकि क्लास बिल्कुल सेटल थी, तो राइटर कहते हैं कि मेरे को डोर खोल के सबके सामने से जाना पड़ा क्लास में. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज. ब्लश्ड मीन्स हाउ, मुझे कितनी शर्म आ रही थी, हाउ ह्यूमिलिएटेड आई फेल्ट, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." सर ने
फ्रांस को देखा और कुछ नहीं बोला और सिर्फ इतना बोला, जाओ अपनी सीट पे जल्दी जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने लगे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं फटाफट अपनी बेंच पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। और मैं अभी भी डरा हुआ था, और जब तक मैं उस डर को ओवर पार किया मैंने, देन आई discovered something, observed something. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? मैंने ये नोटिस किया कि टीचर ने आज अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। His frilled shirt, जो शर्ट के ऊपर फ्रिल लगी हुई है, फ्रिल्स आर डेकोरेशंस, जिसको झालर कहते हैं ना कपड़े का, तो उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है आज। And the little black silk cap, all embroidered. These three things are very important. The things which Franz noticed about his teacher's appearance on that day. First is his beautiful green coat. Second is his frilled shirt. And third is the little black silk cap, all embroidered. तीसरी चीज़ जो इनकी छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। फ्रेंड्स को पता था कि सर ये जो अपने सुंदर कपड़े हैं, ये जनरली वो इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था स्कूल में तब पहनते थे। Besides means in addition to this, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means serious. Franz noticed something else also about the school, कि स्कूल आज बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत सीरियसनेस है आज एटमॉस्फेयर में। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. एक चीज़ और हैरान करने वाली लगी फ्रांस को कि जो बैक बेंचेस थी जो यूजुअली खाली होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, कि जो गांव के लोग थे हमारे जैसे वो भी चुपचाप बैठे हुए थे पीछे। उनमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने थ्री कॉर्नर वाला हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स अर्लियर, जो पहले के मेयर थे उस एरिया के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले के पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इनके अलावा और भी बहुत सारे गांव के लोग, देवर सिटिंग इन द क्लास एट द बैक ऑफ द क्लास। एवरीबडी लुक्ड सैड। फ्रांस ने सबका एक्सप्रेशन स्टडी किया कि हर कोई उदास लग रहा था। एंड हॉस्टर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर इज एन एलिमेंट्री बुक ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे छोटे बच्चों के क ख ग ए बी सी वाला छोटी बुकलेट होती है ना स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो ओल्ड हॉसर ही हैड ब्रॉट दैट प्राइमर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिम टू स्टडी। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मीन्स फोल्डेड। जब हम किसी बुक को रिपीटेडली पढ़ते हैं तो वो कॉर्नर से फोल्ड हो जाता है पेज, तो सच वॉज द बुक प्राइमर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने अपनी नीज पे, घुटनों पे उसको खोल के रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके जो बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स थे, चश्मा, वो पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। अभी फ्रांस वॉज वंडरिंग एज टू what has happened, why is this class so silent, why are people villagers sitting at the back of the classes। तो एम हैमल उनके टीचर चेयर पे बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जिस ग्रेव मीन सीरियस, जेंटल मीन सॉफ्ट, जिस सीरियस और सॉफ्ट सी टोन में विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की थी उसी टोन में उन्होंने हमें एड्रेस किया। एंड ऑल हिज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो फ्रेंच के टीचर थे, एंड ही सेज कि ये आज का लास्ट लेसन है, और फ्रॉम हियर वी गेट द टाइटल ऑफ द लेसन ऑल्सो, द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. These lines are very important कि एक ऑर्डर आया बर्लिन से
कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो न्यू मास्टर है, टीचर है, वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और जो आज का लेसन है ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान से पढ़ें आज। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means shocking words. What a shock these words were to me. फ्रांस को ये जो सर के कहे हुए वर्ड्स थे उसको एक झटका लगता है, सदमा लगता है। Oh, the wretches. Wretches is when we curse somebody, we use this word wretch, a word used for cursing people. Oh, the wretches. Wretches, here he is referring to the Prussians. That was what they had put up at the town hall. वो कोरिलेट करता है कि अच्छा ये सर्कुलर उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे लगाया हुआ था। My last French lesson? Why? And now he is contemplating on his own status, his knowledge of French. He says ये मेरा आज का last lesson है French का। Why? क्यों? I hardly knew how to write. ये लास्ट कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मुझे मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं इसको लर्न कर पाऊँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब आई हैव टू स्टॉप लर्निंग फ्रेंच नाउ। देन oh how sorry I was for not learning my lessons. And Franz depicts his inner state now कि मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैंने जो सर पढ़ाते थे लेसन्स मैंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं लेसन पढ़ने को से ज़्यादा या लेसन को समझने से, लर्न करने से ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता था, बर्ड्स के एग्स जाके कलेक्ट करना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार इज़ द रिवर वैली देयर, तो वहाँ पे मुझे वैली में जाके वहाँ स्लाइडिंग करना अच्छा लगता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। न्यूसेंस इज़ अ डिस्गस्टिंग थिंग, जो आपको परेशान करती है, अच्छी नहीं लगती है। मेरी बुक्स जो मुझे न्यूसेंस लगती थी थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, और मुझे वो बैग में कैरी करना भी बहुत हैवी लगता था बुक्स को। माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। ही सेज जो उसकी बुक्स थी ग्रामर की, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स की, वो मेरी अब पुरानी फ्रेंड्स बन गई थी। एंड ही कुडंट गिव देम अप नाउ, और वो उनको छोड़ नहीं सकता था अब। एंड एम हैमल टू, और वो अपने टीचर को, एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये थॉट ही, सोचना कि सर जा रहे हैं और वो सर को दोबारा नहीं देख पाएगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was. He loved and respected his teacher so much that he forgot all about कि teacher ruler भी use करते हैं। He was strict also and he was cranky also. Cranky is a person who gets easily irritated, कि सर को, सर इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ जाते थे या गुस्सा हो जाते थे बहुत जल्दी। He forgot these two things. Poor man. Now he felt sorry for his teacher. Bichare sir, it was in honor of this last lesson. These lines are again very important कि उनके ये जो लास्ट लेसन के ऑनर में, उनको रिगार्ड देने के लिए, इज्जत देने के लिए, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, क्योंकि ये लास्ट लेसन था, ही वांटेड टू मेक इट मेमोरेबल, इसीलिए आज उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए थे जो वो संडे को पहनते थे। मे बी व्हेन दे गो फॉर प्रेयर्स, राइट, तो उन्होंने अपने बेस्ट कपड़े आज इसीलिए ही पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और फ्रांस, बेशक वो छोटा बच्चा था, अब वो समझ गया कि जो old people हैं, why they were sitting at the back of the classes.